chapter number 14, source of energy. So I hope you know that source means what. So source means that from where do we get. So here it's source of energy. So from where do we get energy? So we all know that we get energy from coal, we get energy from petroleum, we get energy from sun, we get energy from wind, etc. So all these are source of energy. So in this particular chapter, we are going to study about the different sources of energy. Right? Now, first of all, we need to understand that what do you mean by a good source of energy? Right? Good source of energy हम किसे कहेंगे? So हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एनर्जी यूज कर रहे हैं फॉर डूइंग वर्क. There is a different energy that we use for running fan. Different energy is there for running the vehicle. We use the energy for solar panels. So there are different types of energy that we are using. But हम good source of energy किसको कहेंगे? Let's understand about it. So good source of energy की कुछ क्वालिटीज है, कुछ क्राइटेरियाज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के. तो हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी उसको कहेंगे इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वेयर विच इज इजीली असेसिबल. इजीली असेसिबल मतलब वो आपको इजीली कहीं पे मिल जाए. राइट? देखो हम क्या चाहते हैं कि हम जो फ्यूल यूज करते हैं, हम जो एनर्जी यूज करते हैं, व्हाट अ कॉमन मैन वांट्स कि जो मैं एनर्जी यूज करूं ना, इट शुड बी चीप. सबसे पहले तो वो चाहिए. मीन्स इट शुड बी इकोनॉमिकल. ऐसा नहीं बहुत महंगा हो. एवरीबडी वांट्स दैट माय सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी इकोनॉमिकल. सेकेंड वो चाहेगा दैट माय सोर्स ऑफ एनर्जी शुड कॉज पॉल्यूशन एज लिटिल एज पॉसिबल. माय सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू स्टोर. My source of energy, most important बात, my source of energy should give me a lot of work per unit volume. Per unit volume मतलब अगर मैं कोई vehicle खरीदूंगा ना, so first of all what our parents wants that कि ये vehicle का mileage कितना है. So what is the meaning of mileage? Mileage मतलब 1 लीटर फ्यूल में ये vehicle कितना चलेगा. Right? So I want a source of energy which gives me a large amount of work per unit volume. Easily available, should cause as little as possible, should cause pollution as little as possible, easy to store, easy to transport. Most important, it should be economical. One more thing, it should leave no residue after burning. जलने के बाद उसमें कोई रेसिड्यू नहीं बनना चाहिए. रेसिड्यू मतलब राख, एंड में जो बचता है ना, एश. So it should not leave any residue after burning, or it should leave less residue after burning. तो इस तरह अगर ये सारी क्वालिटीज किसी सोर्स ऑफ एनर्जी में है, so we will say that it is a good source of energy, या उसको हम कहेंगे it is a good fuel. Right? Conventional source of energy. So now here कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जो हम सेंचुरी से यूज करते आ रहे हैं. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बाद टू रन द इंडस्ट्रीज, टू गिव अ बेटर लाइफ क्वालिटी टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई और इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. अच्छा सर, इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? द रीजन इज दैट दीज फ्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये फ्यूल्स डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में से मिलते हैं और इनको बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. एंड बिकॉज इनके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इनका जो रिजर्व है, रिजर्व मीन्स क्वांटिटी, वो बहुत लिमिटेड, वेरी लिमिटेड. राइट? सो मे बी इन द नेक्स्ट 30-40 years there will be no petroleum left in the world. पेट्रोलियम और पेट्रोल अलग है सर. पेट्रोलियम में you will have petrol, you have diesel, you have kerosene, you have CNG, you have LPG, everything comes in petroleum. So in the coming 30-40 years there will be no petroleum left. All will be
एग्जॉस्टेड, सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा पेट्रोलियम, क्योंकि उसका डिमांड इतना ज्यादा है. सो द वे वी आर कंज्यूमिंग इट राइट नाउ, if we keep consuming it in the same way, very soon this source of energy will get exhausted. So in short, हमें fossil fuels को judiciously use करना चाहिए. Judiciously मतलब सोच समझ के. Fossil fuels को use करने के there are disadvantages. Please check. सबसे पहला disadvantage fossil fuels को use करने का ये है that इनके जो ऑक्साइड्स हैं, इनमें से जो ऑक्साइड्स लिबरेट होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, फॉसिल फ्यूल को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं. सर ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं. इट मीन्स दे मिक्स विद रेन वाटर, दे प्रोड्यूस एसिड रेन्स एंड दीज एसिड रेन्स आर वेरी हार्मफुल. ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, द ग्लोबल वार्मिंग takes place, greenhouse effects takes place, temperature of the earth increases. Fossil fuels are not advisable nowadays because they cause a lot of pollution and other problems to various organisms. So इस activity 14.3 में हमें एक टेनिस का बॉल लेना है and you have to make 3 slits, means 3 cut inside the ball. Using some cutter or something, you have to make 3 slits. उसके अंदर सेमी सर्कुलर मेटल फिन्स लेने, मतलब मेटल को सेमी सर्कुलर शेप में काट के उन 3 स्लिट्स में आपको मेटल फिन्स लेने. तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे ना सर, तो ये एक छोटे से फैन जैसा दिखाई देगा. बीच में टेनिस का बॉल, आसपास 3 मेटल फिन्स. अब इस बॉल को आपको इस बॉल के अंदर आपको एक एक्सल डालना है, एक रॉड डाल देना है. रॉड शुड बी वेरी रिजिड, मींस कहीं से सपोर्टेड होना चाहिए, एंड द बॉल शुड बी एबल टू मूव ऑन द रॉड. बॉल उस रॉड के आसपास ऐसे घूमना चाहिए. दैट अरेंजमेंट यू हैव टू डू. नाउ प्रेशर कुकर में से जो स्टीम लिबरेट होता है सर, दैट स्टीम इज a waste for us, it's of no use. तो with the help of pipe हमें उस स्टीम को इस टेनिस बॉल के ऊपर, ये जैसे ही स्टीम इस टेनिस बॉल पे गिरेंगी सर, द टेनिस बॉल विल rotate, and as the tennis ball rotates, this tennis ball is connected to a dynamo. Dynamo is an electric generator. So जैसे ही डायनामो फंक्शन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द बल्ब विल ग्लो. ओके, सो दिस बॉल हैविंग द मेटल फिन्स, इट एक्ट्स एज अ टर्बाइन, राइट. और टर्बाइन जैसे जैसे घूमेगा, द डायनामो विल वर्क एंड यू कैन सी देयर द बल्ब विल ग्लो. सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. आप और हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर थर्मल पावर प्लांट्स. थर्मल मतलब हीट. हम लोग ऐसे पावर प्लांट्स यूज कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल का मतलब कोल एंड पेट्रोलियम. कोल और पेट्रोलियम को जला के पानी को बॉईल किया जाता है, उस पानी में से स्टीम प्रोड्यूस होती है और उस स्टीम से टरबाइन रन करता है, एंड बिकॉज ऑफ द रनिंग ऑफ द टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. लाइक वी ऑल पीपल ऑफ अहमदाबाद, most of us are getting our electricity from Sabarmati thermal power station. If you go to Sabarmati, there is a thermal power station there. From there we are getting this electricity, right? So इसका बेनिफिट ये है, इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशंस, दिस इलेक्ट्रिसिटी reaches our house through cables and all, but more effectively इन पावर स्टेशंस को रन करने के लिए इनको कोल या पेट्रोलियम चाहिए. तो ज्यादातर थर्मल पावर स्टेशंस आर नियर कोल फील्ड और ऑयल फील्ड. सो डज इट मीन कि साबरमती के पास कोल फील्ड है? नो,
There is no coal field over there. So why it is located there? The reason is there is a railway station there. And I hope you know that जितना भी coal transport होता है, that is from railways. Right? चलो. So a lot of heat energy is produced in this thermal power plant, and this heat is converted into electricity. Next, please come to the topic of hydro power plants. Sir, अगर पानी flow हो रहा है, if the water is flowing, it possesses kinetic energy, and if the water is stationary, रुका हुआ, it possesses potential energy. If moving, kinetic energy. If stationary, potential energy. We all know about it, right? Now, in our entire India, lots of power plants are made, right? कुछ power plants thermal हैं, but आजकल hydro power plants, let's talk about this. Hydro power plants are associated with dams. There are some dams in India, right, sir? Yes. So they are associated with dams. अब डैम में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है सर? लेट्स हैव अ लुक एट इट. सो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं. एक्चुअली डैम, वेयर आर डैम्स? सो डैम्स आर ऑन द रिवर, दे आर ऑन सम रिवर और द अदर, राइट? तो ये डैम्स क्या करते हैं? वाटर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स स्टॉप, मीन्स दे मेक द वाटर स्टोर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. और जब काफी पानी भर जाता है, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट द गेट्स ऑफ द डैम ओपन, राइट? ओके. अब जब डैम के अंदर बहुत सारा पानी है, राइट? सो व्हेन लॉट ऑफ वाटर इज देयर इन द डैम, what they do, water from higher level is made to come down to lower level using electric motors, and with the help of the water, movement of water, टरबाइन को ये लोग मूव करवा रहे हैं. ये सब डैम के पानी के अंदर हो रहा है. पानी की हेल्प से, पानी जो रुका हुआ है, मोटर की हेल्प से उस पानी को मूवमेंट मिला रहे हैं, and they make the turbine run. And once the turbine runs, electricity is generated, and such electricity is called hydroelectric power, या hydroelectricity. So does hydroelectricity use any fossil fuel? No. Any pollution? No. So this is the advantage of hydro power plant, right sir? Hydro power plant वहां generate हो सकता है जहां dams. Does each and every city has dam? No. Does it mean that we have to construct new dams? Never. Question is, क्यों new dams construct नहीं करने चाहिए? Why do people oppose the construction of dams? Oppose. ठीक है, अब उसके बारे में स्टडी करते हैं. Now everybody knows that एक डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए you need a huge area. You require a very huge area for making the dam. Obviously वो area आपको मिलेगा either on hills or you will get in forest. It means कि आपको forest के vegetation को destroy करना पड़ेगा, right sir? Now keep in mind, अगर forest vegetation पानी के अंदर submerge हो जाए, then this vegetation will rot, सड़ जाएगा, और उसमें से harmful methane gases will be released, and these methane gases, they will cause global warming or greenhouse effect. So it is not advisable to make such type of dams in forest. अगर हम कोई city में बनाते हैं, so a lot of human habitation, a lot of factories, offices, commercial areas, they have to be destroyed, and nobody wants that, right? So in short, अच्छा चलो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ह्यूमन रिहैबिलिएशन. ह्यूमन रिहैबिलिएशन मतलब सपोज आपके घर, आपने अपना घर दे दिया, लो भाई डैम बनाओ इसमें, बट वी प्रॉमिस्ड यू कि हम आपको यहाँ पे घर लेके देंगे, वहां पे घर लेके देंगे,
बट आफ्टर शिफ्टिंग देयर उन लोगों का रिहैबिलिटेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, वेदर दे गेट some earning opportunities over there, whether they get what they are promised. गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया, सही में वो मिला डैम बनाने के बाद? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू मेक अ dam, or even it's not advisable to increase the height of the dam. Okay, sir. Coming to biomass. So the heading, please check. Improvement in the technology for using conventional source of energy. So first of all, we need to understand biomass means what, sir. हम बायोमास कैसे कहते हैं सर? सर कोई भी प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट, किसी भी प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट को अगर हम फ्यूल की तरह यूज करें, इफ यू आर यूजिंग एनी प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट एज अ फ्यूल, then that fuel is called biomass. Let's take one example. From plants we get wood, लकड़ी, और उस लकड़ी को हम एज अ एनर्जी यूज कर रहे हैं. So wood is a biomass. Animal dung means cow dung specially. Cow dung we get from animals and that cow dung is used for energy, and so cow dung is also biomass. So these are the two common examples of biomass, wood and cow dung. Now हमारे इंडिया में लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन बहुत है. लाइफ स्टॉक मतलब कैटल, गाय, भैंस, बकरी, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स फ्यूल, जैसे मैंने कहा वुड एंड कोल. बट ये जो प्रोडक्ट्स हैं दे डू नॉट रिलीज मच हीट ऑन बर्निंग. ये प्रोडक्ट्स में से ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती एंड दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक. सो सर this wood and cow dung, as they produce a lot of smoke, तो कुछ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स करके नाउ वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी. इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी मतलब उसमें से कम स्मोक रिलीज हो या स्मोक रिलीज ना हो, and at the same time it should give us a lot of energy. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है सर? फर्स्ट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वुड. पहले लोग क्या करते थे? वुड को काट के आते थे या वुड को खरीद लेते थे मार्केट में से, एंड दैट वुड दे यूज्ड टू यूज फॉर बर्निंग वाटर, फॉर हीटिंग वाटर, फॉर कुकिंग फूड. बट वुड ऑल्सो डज नॉट गिव लॉट्स ऑफ energy and produces lots of smoke. But the scenario has changed now. अगर आप प्लीज कम टू द बायोमास पैराग्राफ, लास्ट 4th लाइन. अगर आप वुड को बर्न करते हो, when wood is burned in limited supply of oxygen, we need to burn wood in limited supply of oxygen, water and volatile materials present in it gets removed. So all the insoluble impurities, that is all the volatile matters, ये सारे रिमूव हो जाएंगे अगर आप वुड को बर्न करोगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करने से एंड में जो रेसिड्यू बचेगा उसको बोलते हैं चारकोल. चारकोल, ठीक है, इसका नाम है चारकोल. ये चार वो हिंदी वाला चार नहीं कि तुमको गिन के किसी ने चार कोल दे दिए. नो, नॉट दैट. Charcoal is a name given to the residue which is left after burning wood in limited supply of oxygen. Charcoal looks like coal, that's why the name is charcoal. Sir, charcoal की एक best benefit, please find out. Charcoal burns without flame. Without flame मतलब इसको जब जलाते हैं तो आग नहीं होती उसके ऊपर, flames नहीं होती. Is comparatively smokeless, does not produce smoke, and has higher heat generation efficiency. Lots of heat is produced, no smoke and no flame. So this is how हमने wood को better तरीके से यूज कर सकते हैं using charcoal. चलो स्टूडेंट्स, now what about cow dung? अब जितने भी प्लांट वेस्ट है
जितने भी प्लांट वेस्ट मटेरियल्स हैं, इंक्लूडिंग द वेस्ट ऑफ द हाउस, घर का सब्जी का कचरा, काउडंक या कोई भी एनिमल एक्सक्रीटा, द वेस्ट ऑफ द क्रॉप्स, प्लांट्स अपने फील्ड को हार्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है, इन सब को वी पुट इनसाइड अ बिग बायोगैस प्लांट. बहुत सारे विलेजेस में एक बायोगैस प्लांट होता है. दिस बायोगैस प्लांट इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस प्लांट. राइट? अब कैसे ये वर्क करता है, लेट्स अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you look at figure 14.4, such type of biogas plant is made inside the village under the earth surface. मतलब एक बड़ा सा पहले खड्डा बना के इस टाइप का डोम शेप स्ट्रक्चर दे मेक इट इनसाइड द अर्थ सरफेस. प्लीज चेक स्लरी. स्लरी मतलब यहां से ये लोग विलेज का सारा वेस्ट डालते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल एक्सक्रीटा, इंक्लूडिंग वाटर, इंक्लूडिंग मिट्टी, सॉइल, गांव का पूरा कीचड़, एवरीथिंग दे पुट इनसाइड. व्हाट दे पुट इनसाइड? ऑल द बायोडिग्रेडेबल थिंग्स. नो प्लास्टिक, नो मेटल, नो ग्लास. नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें नहीं डाली हैं, सारी बायोडिग्रेडेबल. सो ऑल दीज थिंग्स विल सेटल इनसाइड, they will go inside into a digester tank. In this, because this tank is very deep inside the earth, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे एंड कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स वेस्ट इनटू सिंपल गैसेस. बहुत सारी गैसेस लिबरेट होगी, एक नहीं बहुत, सबके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं. एंड ऑल दीज गैसेस विल कलेक्ट, प्लीज फाइंड आउट, इन गैस टैंक. Gases will be collected in gas tank, and from the gas tank, this gases will go to different houses, and this gas will be used for cooking and for generating and for running electrical devices. घर की इलेक्ट्रिसिटी और कुकिंग पर्पज के लिए we use biogas, and there are many villages across India. The whole village works on biogas. Even the street lights are functioning on biogas. So it's a great advantage. क्या एडवांटेज है? एक, बिना किसी फॉसिल फ्यूल के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. नंबर 2, साथ साथ हम विलेज को क्लीन कर रहे हैं, सारा वेस्ट तो हमने इसमें डाल दिया. राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो पोल्यूशन. राइट? एंड वी आर नॉट ओवर डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स. दिस इज अ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. और ये जो बायोगैस है सर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बट इसमें जो सबसे मेन गैस है उसका नाम है, प्लीज सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज रिटन 75% मीथेन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस विच इज इन द बायोगैस इज मीथेन गैस. सो इट हैज नो स्मोक, इट प्रोड्यूसेस नो रेसिड्यू. इसका हीटिंग कैपेसिटी बहुत हाई होता है. एंड व्हाट अबाउट डिकम्पोजर्स ने डाइजेस्टर टैंक में सारे वेस्ट को डिकम्पोज कर दिया, उसको गैस में कन्वर्ट कर लिया. अब जो वेस्ट बचता है डाइजेस्टर के अंदर, उसको आउटलेट के थ्रू बाहर निकाला जाता है, एंड दैट वेस्ट इज अ वेरी गुड मैन्योर. फार्मर्स टेक दैट वेस्ट एंड यूज इट इन देयर सॉइल, and that will increase the fertility of the soil. Bio waste से safe और efficient manure भी बनता है. So these are there are so many advantages of using a biogas. Right, sir? An important question where you have to explain the biogas plant with diagram and what are the advantages of using biogas. Next topic is wind energy. Now students, you must have seen windmill. Maybe आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो आपके आंखों के सामने, और मे बी यू मस्ट हैव सीन आइदर ऑन द टीवीज और गूगल, पता नहीं कैसे देखा होगा आपने विंडमिल. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ विंडमिल? विंडमिल इज अ ह्यूज फैन, बहुत बड़ा फैन, विच इज पुट ऑन अ मेटल टावर.
राइट। सो विंड मिल एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फैन है, इसको बहुत हाइट पे रखा जाता है यूजिंग अ रिजिड सपोर्ट। पहले ऐसे विंड मिल्स, इनका पहले यूज था जस्ट टू ग्राइंड द ग्रेन्स, बट nowadays such windmills are used to generate electricity. Now we all know that wind blows, so wind always blows from higher pressure to lower pressure. So when the wind blows, जैसे से wind blow करेगा, ये जो windmill का fan है it will rotate, और जैसे windmill का fan rotate करेगा, this with the rotation of this fan of the windmill, this is directly connected to a generator or dynamo. So जैसे जैसे windmill का fan rotate करेगा, electricity will be generated, and such type of electricity is said to be electricity generated by using wind. So fan के movement से turbine move करेगा, this is connected to a turbine, and turbine is connected to a electric generator. Okay, so where you will find, in Gujarat there are many places like Okha, Lambha, Mandvi. Matlab, these are the places which are near the sea coast. So there you can have such windmills. Why can't we have it on our terrace? The reason is, इन windmills को function करने के लिए जो speed होना चाहिए wind का, it should be 15 kilometers per hour. मैं speed repeat कर रहा हूँ, 15 kilometers per hour. और ये speed, ये average speed है. Average speed मतलब कभी 10 भी हो सकता है, कभी 25 भी हो सकता है. So average speed of wind should be 15 kilometers per hour. Okay, so please come to page 248 everyone. Wind energy is environmental friendly. It is renewable. It requires no recurring expense. Recurring expense मतलब बार बार खर्चा नहीं होगा एक बार लगाने के बाद. लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है. लिमिटेशंस मतलब ड्रॉबैक्स. ओके, प्लीज चेक. पहला लिमिटेशन क्या है? नंबर 1, wind energy farms can be established only at those places where wind blows for greater part of year. Means there should be wind blowing throughout the year. पूरा साल अच्छी wind आनी चाहिए. The wind speed should be higher than 15 kilometers per hour to maintain the required speed of the turbine. So speed को please याद रखिएगा, more than 15 kilometers per hour. Next point, limitation. This is an important answer. There should be backup facilities to take care of the energy needs during a period where there is no wind. See, some months wind will be very less. उन months में there should be backup facility. Backup facility मतलब ये windmill जिस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है, सो उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं पहुंच पाएगी. So there has to be some backup facilities. Electricity should be stored so that it can be used during those time when the windmill does not produce much electricity. सबसे इंपॉर्टेंट बात प्लीज फाइंड आउट, अगर आपने कहीं ऐसे विंडमिल्स देखे होंगे ना, तो वो एक साथ कितने होते हैं? 2, 5, 10, 15, बहुत सारे. ठीक है, hundreds और इवन मोर देन दैट. सो क्या ये बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे के? नो, देयर इज अ ग्रेट डिस्टेंस. सो प्लीज अंडरलाइन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड for 1 megawatt generator. The farm needs about 2 hectares of land. अब farm मतलब क्या? Please understand. एक ऐसी एरिया जहां बहुत सारे windmills हो, उस एरिया को wind farm कहते हैं. A area where there are too many windmills, बहुत सारे windmills हो, that area is called a wind farm. तो एक 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए द विंड फार्म हैज टू बी 2 हेक्टर्स. 2 हेक्टर्स का मतलब 20,000 स्क्वायर मीटर. 1 हेक्टर इज 10,000 स्क्वायर मीटर. सो 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड. अब सबसे बड़ा लिमिटेशन विंड मिल का, प्लीज लिसन, ये जो पूरा स्टैंड है
windmill का? It is made up of metal. The fans are made up of metals. And we all know that ये जो metals हैं, ये जो blades हैं, due to rainfall or due to climatic conditions, cyclone, storm, in सब metals they get corroded, they get damaged. So इनका maintenance cost बहुत ज़्यादा है. किसका? Windmill का. So windmill has got very high maintenance. And these are the limitations of windmill. Very important answer. तो ये पूरा पैराग्राफ लिखना है. फर्स्टली से लिखा हुआ है ना, वहां से लेके टिल द पैराग्राफ एंड्स. हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस. द आंसर इज, द क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ विंडमिल. सोलार एनर्जी. अब सोलार एनर्जी इज द फ्यूचर फॉर टुमारो, वी कैन से दैट. एवरीथिंग विल बी वर्किंग ऑन सोलार ओनली. अब जो हमारे सन है, ये हमें बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं. सिंस लास्ट, प्लीज सी सेकेंड लाइन, 5 बिलियन ईयर्स वी आर गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम सन. और 5 बिलियन ईयर्स ये और भी हमें एनर्जी देने वाले हैं. राइट तो इसमें से काफी सारी एनर्जी रीचेज द अर्थ सरफेस एंड सम एनर्जी रिफ्लेक्ट्स एंड गोज बैक टू द स्पेस. अब ये जो एनर्जी है, वी आर वेरी लकी दैट इंडिया गेट्स लॉट्स ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू आउट द ईयर. सो हाउ कैन वी यूज दिस सोलर एनर्जी? तो प्लीज लुक एट द बॉटम ऑफ दिस पेज. पहले हम लोगों ने सोलर कुकर्स बनाए थे. अब सोलर कुकर क्या होते हैं? सो व्हाट इज अ सोलर कुकर? सो प्लीज लुक एट फिगर 14.6. सो दिस इज अ बॉक्स. दिस इज अ कंप्लीट ब्लैक बॉक्स. अब रीजन क्या है इसको ब्लैक करने का? बिकॉज ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम सनलाइट. मैक्सिमम सनलाइट ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है. सो इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट. अब सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर, दे बोथ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. अब ये सोलर कुकर्स क्या करते हैं सर? They are used to cook food. Solar water heater, they are used to heat water. So this is very common. We all know that, right? Now students, just now we talked about solar cooker. Solar cooker. तो solar cooker के क्या क्या limitations हैं और क्या क्या advantages. पहले हम advantages पे आ जाएं solar cooker के. Does it require any fuel? No. It works only on sunlight. Advantage: no pollution, no residue, right? Very cheap. Yes. सिर्फ स्टार्टिंग में जो सोलर कुकर खरीदने का खर्चा है बस वही. अब लिमिटेशंस क्या है? अच्छा, एडवांटेज एक और, सोलर कुकर से जो फूड प्रोड्यूस होता है इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है. बिकॉज देर इज नो ओवर कुकिंग, देर इज नो फ्राइंग. So nutritional value is very high. What about limitations? Solar cooker का limitations. You cannot cook food on cloudy day or at night. रात को खाना बनाना हो तो दोपहर को ही बना के रख देने का. रात को कोई मेहमान आए तो उसको बोलने का चाय पीने के लिए कल सुबह में आना. Confirm? So this is the limitation of solar cooker. क्लाउडी डेज पे, नाइट पे, मतलब जब सनलाइट नहीं है, ये फंक्शन नहीं कर सकते. एम आई क्लियर? टाइम कंज्यूमिंग, राइट? बहुत टाइम आपका कंज्यूम होता है. 2-5 मिनट में मम्मी कैन नॉट मेक्स एनीथिंग फॉर यू. सो लेट्स गो फॉर. अब ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 250, प्लीज सर्च फॉर द डायग्राम ऑफ सोलर सेल पैनल. अब ये पैनल आजकल बहुत कॉमनली हमें लोगों के टेरेस पे दिखाई देता है. और ज्यादा कॉमनली कहां दिखाई देता है? सभी ट्रैफिक सिग्नल्स पे. प्लस इफ यू गो फ्रॉम इंदिरा ब्रिज टुवर्ड्स गांधीनगर, यू विल फाइंड दैट जितनी भी लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, दे आर वर्किंग यूजिंग सोलर पैनल्स. Now no electricity, rather than electricity we are using solar panels.
ओके तो ये सोलर पैनल्स बहुत एडवांटेजेस हैं बिकॉज दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर एनर्जी. So what is the function of solar cell? They convert solar energy into electric energy. थर्ड लाइन. अब हम बात करते हैं सोलर सेल के बारे में. सोलर पैनल मीन्स व्हाट? पैनल मीन्स अ ग्रुप ऑफ मेनी सेल्स. सोलर पैनल के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. अ टिपिकल सेल डेवलप 0.5 to 1 volt potential difference and can produce 0.7 watt of electricity. ये पावर है उसका. तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो बहुत कम है. तो पावर को ज्यादा जनरेट करने के लिए बहुत सारे सोलर सेल्स कनेक्ट किए जाते हैं एंड सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड, प्लीज अंडरलाइन, सोलर सेल पैनल. If there is only one cell, it's called solar cell. But if you combine many cells, then it is called a solar cell panel. अब इसका एडवांटेज पे आते हैं सर. सोलर सेल के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है उसके अंदर. इट रिक्वायर्स वेरी लेस मेंटेनेंस एंड ये अपना जो वर्क है टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज डूइंग वेरी वेल. रिमोट एरियाज या इनअसेसिबल एरियाज, सपोज करिए कि किसी माउंटेन पे कोई रिसर्च सेंटर बनाया है गवर्नमेंट ने, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी केबल्स के थ्रू पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट. सो वहां हम क्या सेटअप कर सकते हैं? सोलर सेल पैनल. फॉरेस्ट के इंटीरियर में जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं उनके लिए एक रेसिडेंस है जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं. So there you can have solar cell panel. If there is an island, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना डिफिकल्ट है, so there you can have solar cell panel. So remote areas or inaccessible areas or inaccessible hamlets we can say, जहां population बहुत कम है, there you can have such solar cell panel. So this is the great advantage. अब let's come to the disadvantage of using solar cell. सोलर सेल का लिमिटेशन क्या है? कोई लिमिटेशन है क्या? बिल्कुल है सर. प्लीज सर्च. सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन. सी द फर्स्ट लाइन. सिलिकॉन विच इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल इज अबंडेंट इन नेचर. अबंडेंट मीन्स बहुत सारा, बहुत हाई क्वांटिटी में. सिलिकॉन बहुत ज्यादा है नेचर, प्रॉब्लम नहीं है. बट सी द नेक्स्ट लाइन. अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन, स्पेशल क्वालिटी का सिलिकॉन जिससे सोलर सेल बनता है, इट इज वेरी लिमिटेड. इसका स्टॉक बहुत कम है. स्पेशल सिलिकॉन का स्टॉक बहुत कम. इसीलिए सोलर सेल्स आर वेरी एक्सपेंसिव. रीजन, सिलिकॉन इज वेरी लेस अवेलेबल. प्लस दो सोलर सेल के बीच में, दो सोलर सेल को किससे कनेक्ट किया जाता है? प्लीज अंडरलाइन थर्ड लाइन. सिल्वर. सिल्वर, हाँ सिल्वर. सिल्वर इज यूज्ड. अच्छा, वाई सिल्वर इज यूज्ड? आपका फेवरेट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. वाई वी यूज सिल्वर? बिकॉज सिल्वर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस. एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है, सो वी कैन नॉट हैव मेटल जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है. सो दैट्स वाई वी यूज दैट्स वाई वी यूज सिल्वर टू कनेक्ट टू सेल्स. तो सिल्वर जैसे ही ऐड होता है सोलर पैनल में, यू ऑल विल अग्री दैट सोलर पैनल का कॉस्ट बढ़ जाएगा बिकॉज सिल्वर यूज हो रहा है सर, राइट. सो यूज ऑफ सिल्वर इंक्रीजेस द कॉस्ट. सो दिस इज अ बिग लिमिटेशंस. पहला लिमिटेशन, सिलिकॉन स्पेशल क्वालिटी का चाहिए, इट इज वेरी लिमिटेड. एंड सेकेंड, टू सोलर सेल्स आर कनेक्टेड यूजिंग सिल्वर, इट इंक्रीजेस द कॉस्ट. Sir, where is solar cell used? Please see. Used in traffic signals. It is used in remote areas to provide electricity. It is used in calculators. It is used to make toys. जितने भी celestial bodies हैं, artificial, like say for example satellites, they all are working using solar energy, or we can say इनके अंदर solar cells, right? So this is all about solar energy. सर अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
it is energy which is available from the sea, right? Now इस टॉपिक को समझने के लिए you should understand what is the difference between tide and what is the difference between wave. टाइड और वेव में क्या डिफरेंस होता है सर? आई एम स्टार्टिंग विथ टाइडल एनर्जी. अब सर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ, बहुत बार सी के पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड समटाइम्स सी के पानी का लेवल कम हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड हाई टाइड एंड लो टाइड. हाई टाइड मतलब पानी ज्यादा है, लेवल ज्यादा है, और लो टाइड मतलब लेवल. अब इमेजिन करो जहां हाई टाइड लो टाइड हो रहा है, अगर वहां टर्बाइन्स लगा दें तो हाई टाइड मींस पानी ज्यादा है. जब हाई टाइड से लो टाइड होगा तो वो जो पानी नीचे आ रहा है वो टर्बाइन पे प्रेशर डालेगा और टर्बाइन, और जैसे टर्बाइन रोटेट होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट. उल्टा सोचिए, लो टाइड से हाई टाइड हो रहा है, again turbine will rotate, again electricity will be produced. So such energy is called a tidal energy, and this tidal energy is used to generate electricity. Okay sir, tidal energy और wave energy दोनों समझाने के बाद मैं उसके advantages और limitations बताता हूँ. Now let's come to wave. Wave का मतलब लहर सर. We all enjoy the waves when we go to the beach, right? So waves means a area, means see the area where the waves fall. जिस एरिया पे वेव्स गिरते हैं, अगर वहां पे हम टर्बाइंस लगा दें तो जैसे ही वेव्स गिरेंगे टर्बाइंस रोटेट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा. सो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड वेव एनर्जी. अब दोनों के लिमिटेशंस और दोनों के एडवांटेजेस साथ में अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड विथ वाटर. Number 1, advantage. No fossil fuel is used. No case of any pollution. No residue. Right? No global warming because of this. Limitation ये है that अहमदाबाद में tidal energy, wave energy नहीं हो सकती. Because in Ahmedabad there is no sea. Is it? मैंने तो नहीं देखा. No. Right? So there is no sea over here. So no tidal energy, no wave energy. Means this can be harnessed only at those places which has a sea coast. Second big limitations, all the machineries are under water. So huge maintenance. उनका corrosion, उनका maintenance is very high. और इनका initial expense is also very high. And because they are underwater, they need again and again repair. Right sir? So tidal energy and wave energy, that's over. अब एक और टाइप का एनर्जी है विच वी गेट फ्रॉम द सी. दिस टॉपिक इज ओशन थर्मल एनर्जी. सो इफ यू हैव गॉन इनसाइड द वाटर, जो वाटर सी के सरफेस पे होता है ना, सी के सरफेस पे वो गर्म होता है, लेकिन जितना हम सी में डीप जाएंगे ना, इट इज रिलेटिवली कोल्ड. अपर सरफेस इज वेरी हॉट, बट एज यू गो डाउन इट बिकम्स रिलेटिवली कोल्ड. तो ये जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस? टेम्परेचर. दिस टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी यूज्ड टू जनरेट एनर्जी विच इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट. अगर किसी भी ओशन में टेम्परेचर डिफरेंस, प्लीज अंडरलाइन, 20 डिग्री सेल्सियस या मोर है और उसकी डेप्थ मिनिमम 2 किलोमीटर्स है, ओशन की डेप्थ मिनिमम 2 किलोमीटर्स, देन इन सच प्लेसेस we can generate ocean thermal energy. अब कैसे? Please listen to me sir. And they use a liquid. Please see which liquid we are talking about. We are talking about ammonia. Why ammonia? Because ammonia का boiling point बहुत कम होता है. So ये जो heat का difference है आप सबको पता होगा, a hot surface provides its heat to the cold surface. मतलब क्या? देखिए, ठंडी में हम लोग गीजर में पानी गर्म करते हैं और बकेट भर दिया, ठीक है, एंड मम्मी इज शाउटिंग पानी गर्म हो चुका है, एंड स्टिल वी आर वॉचिंग टीवी और डूइंग समथिंग, वी आर स्लीपिंग,
we go after 15-20 minutes, it's not as hot as before. Agree? तो वो हीट कहाँ गई? वो हीट एटमॉस्फेयर के पास चली गई. हमेशा जो हॉटर ऑब्जेक्ट होता है, इट पासेस द हीट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. इन द सेम वे द अपर लेयर आर हॉट, हम ओशन की बात करते हैं, एंड एज यू गो डाउन लोअर लेयर्स आर कोल्ड. सो दीज लेयर पास हीट. तो अगर हम यहां पे एक टेस्ट ट्यूब्स में अमोनिया रख दें, अमोनिया, नाउ अमोनिया इज अ गैस, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना लो है कि जब ये हीट ट्रांसफर होगा ना बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, तो ये बॉयल हो जाएगा खुद ब खुद. और जब ये बॉयल होगा तो इसमें से स्टीम रिलीज होगी, और इस स्टीम से हम टर्बाइंस को रोटेट कर सकते हैं, एंड वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो द इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड बाय सच मेथड, इट इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी. एंड रिमेंबर, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर सेम एज टाइडल एनर्जी एंड वेव एनर्जी. ओके सर, नाउ कमिंग टू जियोथर्मल एनर्जी. डीप इनसाइड द अर्थ, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर, यू मस्ट बी नोइंग देयर आर रॉक्स, एंड यू ऑल्सो मस्ट बी हर्ड अ वर्ड लावा. सो लावा क्या होता है सर? लावा मीन्स आपके जो रॉक्स है वो मॉल्टन फॉर्म में हो जाता है. रॉक्स आर इन मॉल्टन फॉर्म. सो मॉल्टन रॉक्स जो हैं विच आर डीप इनसाइड द अर्थ, ये मॉल्टन रॉक्स या वी कैन से लावा, समटाइम्स इट कम्स अबव अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ आते हैं, और किसी एक रीजन में वो फंस जाते हैं, दे गेट ट्रैप्ड. तो जिस रीजन में मॉल्टन रॉक्स ज्यादा हैं, उस एरिया को बोलते हैं, प्लीज अंडरलाइन, हॉट स्पॉट. वो मोबाइल वाला नहीं है, यहाँ पे अलग हॉट स्पॉट है. हॉट स्पॉट मीन्स अ एरिया वेयर देर आर ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मॉल्टन रॉक्स. थर्ड लाइन, हॉट स्पॉट. अब प्लीज बताइए, लावा इट कॉन्स्टेंटली लिबरेट्स अ लॉट ऑफ हीट, राइट सर? अर्थ क्रस्ट के अंदर पानी भी है सर. What will happen if the water comes in contact with lava? Water will convert into steam. और ये steam हम यूज नहीं कर रहे, राइट सर? ओके. तो कई बार ऐसा होता है सर कि जहां अर्थ के क्रस्ट में वीक स्पॉट होता है ना, वहां से ये गर्म पानी बाहर निकलता है. ये गर्म पानी कहां से आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड. लावा के कांटेक्ट में वाटर आया, वो स्टीम बन गया, and sometimes the steam comes out from some earth surfaces, right? तो अगर उनको पता चल जाता है कि यहाँ हॉट स्पॉट है, यहाँ से बहुत स्टीम जनरेट हो सकती है, सो दे पुट अ पाइप डीप इनसाइड द अर्थ जहां तक हॉट स्पॉट है. सो जो स्टीम प्रोड्यूस होगी वो पाइप के थ्रू बाहर आएगी, और बाहर आके एक बड़े से टरबाइन को एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी वेरी लेस, कोई फ्यूल को जलाना नहीं पड़ेगा. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस वेयर दिस थिंग कैन बी डन. सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस इन अंडरलाइन न्यूजीलैंड एंड यूएसए हु प्रोड्यूस जियोथर्मल एनर्जी, राइट सर? नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी. अब सर न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस, प्लीज अंडरलाइन, द प्रोसेस का नाम इज न्यूक्लियर फ्यूजन. अब यहां पे टू अंडरस्टैंड, प्लीज कीप इन माइंड, बहुत सारे हैवी एटम्स होते हैं. अब हैवी एटम्स मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे सर हैवी इंसान होता है वैसे हैवी एटम, नो. यहाँ पे हैवी एटम्स मीन्स व्हाट? हैवी एटम्स मतलब जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा है. They have a lot many neutrons. Heavy atoms like uranium, plutonium and thorium. अब ये heavy atoms जब bombard होंगे with light neutrons, then they split apart into lighter nuclei. Okay. So just imagine that we have one atom of uranium. ये uranium का एक atom है सर. It could be uranium, it could be plutonium,
इट कुड बी थोरियम. ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब क्या कि इन एटम्स में से कॉन्स्टेंटली अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलते हैं which are very harmful to the environment and to our body also. So imagine करो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटम है, इसको बॉम्बार्ड करना है. बॉम्बार्ड का मतलब होता है ब्रेक करना. अब इसको बॉम्बार्ड करने के लिए हमने एक न्यूट्रॉन लिया. तो एक छोटा सा न्यूट्रॉन है. दिस इज अ हाई स्पीड न्यूट्रॉन विच बॉम्बार्ड्स द एटम. नाउ डू नॉट थिंक कि कोई इंसान ऐसे न्यूट्रॉन फेंकेगा एटम. न्यूट्रॉन इतना छोटा होता है सर, एटम इतना छोटा होता है, वी कैन नॉट सी. सो दिस टेक्स प्लेस इन अ स्पेशल डिवाइस जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दैट. सो जब ये न्यूट्रॉन इस एटम को बॉम्बार्ड करेगा, सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन द न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड्स दिस एटम, तो ये एटम स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 स्मॉलर एटम्स. और इन दो एटम्स का वेट, एटॉमिक वेट इससे कम होगा, प्लस इट विल रिलीज फ्यू मोर न्यूट्रॉन्स. ये एक एटम ब्रेक होगा, दिस एटम विल ब्रेक and this atom splits into 2 more atoms and it generates some more neutrons. अब ये न्यूट्रॉन इस एटम को ब्रेक करेंगे, फिर ये एटम ब्रेक होगा, इसमें से 2 और एटम्स निकलेंगे एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन. नाउ इसमें से जो एनर्जी लिबरेट होती है बाय स्प्लिटिंग द एटम, द energy liberated from one atom of uranium is 10 million times more than the energy liberated from one atom of carbon. कार्बन जो हम कोल में यूज करते हैं, सो वन एटम ऑफ कार्बन जितनी इलेक्ट्रिसिटी जितनी एनर्जी जनरेट करता है, उससे 10 मिलियन टाइम ज्यादा कौन जनरेट करता है? यूरेनियम. सो दिस इज न्यूक्लियर एनर्जी बिकॉज दिस इज द एनर्जी दैट वी गेट बाय स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. Okay. So please search in this process called nuclear fission. Now see, fission and fusion, these are the two things. Fission means to break. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक एटम को ब्रेक कर रहे हैं, एक एटम को बॉम्बार्ड कर रहे हैं. The nucleus of heavy atoms such as uranium, plutonium, thorium, when bombarded with low energy neutrons, can split apart into lighter nuclei. When this is done, a tremendous amount of energy is released, and this energy released is called nuclear energy. The fission of atom of uranium produces 10 million times the energy produced by the combustion of one atom of carbon from coal. In a nuclear reactor, now nuclear reactor is a special device which is used to generate energy which is called nuclear energy. So remember nuclear reactor. So nuclear reactor में nuclear energy से electricity produce होती है. So ये energy जो release होती है atoms में से, उससे पानी boil करके steam बनाते हैं and that steam rotates turbine and that turbine generates electricity. So such energy is called nuclear energy. Now if you turn the page, come to page 252. Now this is the main answer, important answer. यहां पे पता है हम लोग क्या पढ़ेंगे? सी द फर्स्ट वर्ड हजार्ड्स, HAZARD. हजार्ड्स मतलब लिमिटेशंस, हार्मफुल इफेक्ट्स. कैसे न्यूक्लियर एनर्जी इज हार्मफुल? तो सर न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने के बाद जो उसका रेसिड्यू बचता है, रेसिड्यू, वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं उसको, उसमें से कॉन्स्टेंटली अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है. तो अगर इस वेस्ट को आप अर्थ के अंदर बरी कर दो तो इट विल बी लैंड पॉल्यूशन. इफ यू थ्रो इट इन वाटर, इसको जला दो, सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि इसके वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें. दैट्स अ प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 2,
high cost of installation. Initial cost is very high. अगर ये एनर्जी, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई प्रॉब्लम हो गया और अगर ये एनर्जी लीक होने लगी, लीक, so this will be a great problem for all the people living around. High risk of contamination. Plus जो यूरेनियम चाहिए, the uranium that you require for this purpose, it should be of special quality, and that uranium is very less, and that's why nuclear energy is very costly. अब सर पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी यूज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, डिस्ट्रक्टिव, it was used for destructive purpose, but later on scientists came to know that this can even be constructive. It can even generate electricity. Okay everybody, so this is how the nuclear energy is useful. We have to remember its limitation, its hazard especially. Okay, now students, come to the next paragraph of environmental consequences. Now why most of the people are using CNG in the vehicles nowadays? We say it's a clean fuel. Clean fuel का मतलब causes less pollution. Now the question is, remember the question, can any device or can any source of energy be pollution free? क्या कोई source of energy pollution free है? क्या solar energy pollution free है? No. रीजन, सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए यू नीड सोलर सेल्स, यू नीड सोलर पैनल्स, सोलर कुकर, सोलर डिवाइसेस. ये डिवाइसेस कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज में, यूजिंग मेटल्स, यूजिंग मशीन्स, एंड दे कॉज pollution, एंड दैट्स व्हाई नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री. डू यू अंडरस्टैंड? जो हम कहते हैं ना एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एनवायरमेंटल को डैमेज नहीं करेगा, वो पॉसिबल नहीं. उस डिवाइस की असेंबली बनाने के लिए सर्टेनली एनवायरमेंटल डैमेज हुआ ही है, राइट? एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस. अब सर जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, कोल एंड पेट्रोलियम, ये बहुत कम टाइम के लिए है सर. एज पर द रिपोर्ट्स, पेट्रोलियम इज देयर फॉर द नेक्स्ट 30-40 years एंड कोल इज देयर फॉर द नेक्स्ट century. देन दीज सोर्स ऑफ एनर्जी विल गेट एग्जॉस्टेड, ऑलरेडी डिप्लीट तो हो चुकी है, दे विल गेट एग्जॉस्टेड. बट जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वी विल कंटिन्यू टू यूज इट अगेन एंड अगेन. सो नाउअडेज वी आर डिपेंडिंग मोर ऑन renewable rather than fossil fuels. Am I clear?